structure and finance costs. Let's see. Capital used by a company to generate wealth. Capital is something that a company has or gets in order to get more and more profits. It is as good as an invested amount. Now, who invests capital in the company? Either, first of all, person who is a proprietor, he has to bring the capital on the table from his own pockets. Or there are two forms of raising. There are actually various forms of raising finance. Here they have given two forms. One is debt and other is equity. डेट म्हणजे लोन ऍज गुड एज लोन्स अँड इक्विटी म्हणजे इक्विटी शेअर होल्डर्स कडे जाऊन पैसे मागणं की वेदर यू वुड लाईक टू इन्व्हेस्ट इन अवर कंपनी और नॉट. ठीक आहे. आता द कॅपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी. व्हॉट इज द कॅपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी? All companies have to be financed regardless of the type of company that they are. Without financing of any sort of business would not be able to begin. Without financing, obviously, na, because अगर स्टार्टिंग में पैसे नहीं है तो so where would you, if you don't have money in the beginning, how will you invest in other aspects of the business like employees or purchasing goods on credit, as we just heard, ऐसा would not be able to begin trading. They would not be able to purchase raw materials, recruit staff, advertise products, or even put fuel in their vehicles. This is just like a yeah, kind of metaphor. Anyways, finance finance is provided by the capital invested in the business. Finance is provided by the capital invested in the business. Capital is something that on its own has little or no use but can be employed in the generation of wealth. ठीक है ना? Because you invest in the company, so then the company will run its operations and then earn profit. Money in is a form of finance capital. There is not an awful lot you can do with physical currency, except perhaps admire its shiny appearance or burn it if it is papers. Okay, this is just sharing a joke-ish way मैंने बोला है. But it can be used in exchange for goods and services which can be put to good use. Most businesses will exchange money for raw material, machinery. मतलब basically they will get machinery, property, energy, and all that stuff. These items can be used to create goods and services, but they can be sold to generate wealth for the business and its owners. ठीक है. आता debt and equity. Holder of debt is entitled to some form of mandatory repayment. Debt is udhari that we take from let's say bank or some other sources of debt. Of now, whenever we take banks a loan, we have to pay them interest along with along with the capital, मतलब principal amount. So principal amount plus interest is something which we have to pay. Now, equity के केस में वैसा नहीं होता. Equity के केस में equity holders is not entitled to repayment. उनको repay करने की कोई जरूरत नहीं है. Instead, they share the residual assets of the business when it ceases to trade. ठीक है. मतलब जो अपन एसेट्स बेच बेच के पैसे मिल जाते हैं उनको फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या फिर डिविडेंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिलता है. ब्ला ब्ला ब्ला. अभी इकोनॉमिक बेनिफिट इक्विटी ये सब तो पता रहेगा तो मैं स्किप कर रहा हूँ. मोस्ट फॉर्म्स ऑफ फाइनेंस आर सिंपल टू कैटेगराइज बट सम फॉर्म्स ऑफ फाइनेंस हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ एंड इट्स entirely clear whether they are debt, equity, or both. For this syllabus, you need to be aware of three forms of financial capital and how to record them in the financial statements. Ordinary equity share capital. This is equity as the directors are under no obligation to repay the investors. ठीक है. Again, as we had done, or to pay dividend. Dividend देना भी compulsory नहीं होता है, but it adds on value. An ordinary shareholding is evidence of ownership of a company, and the shareholders receive the residual interest in the business once it ceases to trade in proportion to the size of their shareholdings. Ordinary shares are shown under equity on the statement of financial position. So ordinary जो shares होते हैं ना, they become shareholders of the company. Shareholders are like owners of the company. People invest in shares and all through share market. So they come in the category of other छोटे छोटे equity shareholders. कई लोग बहुत ज्यादा शेयर होल्डिंग लेते हैं, जैसे शार्क टैंक में होता है वैसा.
Directors may choose to pay the shareholder an annual dividend. These are recognized in the statement of changes in equity, not the statement of profit or loss. In the UK ACCA, there is another thing which we prepare. It is called statement of changes in equity. It is a statement just like profit and loss balance sheet की तरह एक और statement बनाना पड़ता है. This is not a deduction from profit. हाँ, it is a distribution of profit to the rightful owners of it. ठीक है. आगे बढ़ते हैं लोन नोट्स. Under the terms of So, the but loan note how would you agreement, like explain like the whole para in like simple words? which this whole thing. हाँ, equity So share capital. ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब तूने कभी शार्क टैंक देखा है? Yeah, like basic. Yeah. शार्क टैंक देखा है ना, तो वहां पे पता है ना, ऐसे लोग जाते हैं, दे पिच एंड दे आस्क फॉर मनी, एंड देन दे से कि नहीं 10 लाख फॉर 5% इक्विटी. सो दैट 5% इज द शेयर होल्डिंग, इज लाइक द राइट ऑफ ओनरशिप, कि मैं तेरी कंपनी का 5% होल्ड करता हूँ. क्यों? क्योंकि मैंने इधर एक कंपनी में इतना कैपिटल डाला हुआ है, ऐसा. ठीक है. अब मुझे इसमें से क्या मिलेगा बेसिकली? लेट्स Yeah. लेट्स आस्क अ सिंपल क्वेश्चन, मुझे इसमें से क्या मिलेगा? लेट्स से द Okay. कंपनी गेट्स लाइक वो लिस्टेड इन द, ठीक है, इन द स्टॉक मार्केट. वेदर कंपनी गेट्स लिस्टेड इन द स्टॉक मार्केट, मैं तेरी कंपनी में इन्वेस्ट किए थे 10 लाख रुपए. ठीक है. अब आज के दिन दिन तेरे कंपनी के एक शेयर का प्राइस है लेट्स से 10 रुपया. तो सॉरी, पहले तो आईपीओ खुलता है, राइट? जब आईपीओ खुल जाता है तो जितने पैसे में लो डालते हैं उसके बेसिस पे तेरे को मतलब उनके पास शेयर होल्डिंग आती है. नाउ नाउ लेट्स से मैं तेरी कंपनी में 10 लाख रुपए डाले हुए थे, और तेरा एक शेयर मिल रहा था लेट्स से 100 का. ऐसा नहीं होता, लेकिन लेट्स से 100 का मिल रहा था. तो कितना बोलता है 1 लाख, तो 10 हजार, सॉरी 10, हाँ, तो मेरे पास तेरे कंपनी के 10 हजार शेयर है, बराबर है. when that Yeah. share price will go up, now how will that share price go up? I will also contribute to your company. That's why owners जो होते हैं ना, जो 5%, 10%, 20%, 30% होल्ड करते हैं, वो लोग ज्यादा चंक में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं कि मैं तेरी कंपनी में ज्यादा एफर्ट्स मतलब डालूंगा, और तेरी कंपनी के मतलब प्रॉफिट्स को ऊपर पहुंचाने का ट्राई करूंगा, सो दैट मुझे ज्यादा चंक मिले. सो जब मेरे पास 10 हजार शेयर होंगे, लेट से तेरे कंपनी के 200, अभी तेरे कंपनी का शेयर प्राइस लेट से 200 रुपया हो गया, और मेरे पास थे 10 हजार शेयर्स. मैंने किया था इन्वेस्ट 10 लाख रुपया. 10 हजार शेयर्स का, अब जब तेरी कंपनी का प्राइस 200 हो गया है, मेरे को नहीं लगता कि तेरी कंपनी 200 के ऊपर जाएगी. तो आई विल बी लाइक ओके चलो, एज ए इक्विटी शेयर होल्डर मैं अभी यहाँ से कटता हूँ, मेरा हो गया. तो मैं बाहर निकलूंगा 200 इंटू 10,000, विच इज 20 लाख रुपया. तो मेरे 10 लाख 20 लाख बन गए. एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एज अ एज एज क्या बोलते, वो रेपुटेशन नहीं बोलते, एज as being in the business, or as for just professionalism, you are also Hmm. paying me dividend be like 2 rupees per share. सो मेरे पास तेरे कंपनी के थे कितने, 10 हजार शेयर्स. तो मुझे तेरे कंपनी के एक साल में मिले 20 हजार रुपए. तो जस्ट इट्स लाइक मतलब वो डिविडेंड भी मिलता है, निकलने के बाद थोड़ा सा मतलब वो रिटर्न भी मिलता है, ऐसा. सो दिस इज व्हाट इक्विटी शेयर कैपिटल और शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट फॉर. ठीक है. अभी हमको अकाउंट में अकाउंटिंग देखना है, तो इसका जो अकाउंटिंग होगा वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में होगा. ठीक है. Yeah, but then अभी at the हाँ, same time they bear the risk of like the business failing, right? हाँ, ऑफ कोर्स दैट्स व्हाई दे Yeah. गेट ऑन द बोर्ड ना. दैट्स व्हाई दे गेट ऑन द बोर्ड कि मैं संभालता हूँ कंपनी को, मैं ओनर हूँ ना, मैं देखता हूँ कि ऑपरेशंस कैसे करने हैं. ऐसा रहता है. Right. लोन नोट्स मतलब उधारी. हम लोग को उधारी मिल जाती है, लोन मतलब बैंक से मिलती है, या बाहर से कहीं से एंजल इन्वेस्टर्स नहीं, यार एंजल इन्वेस्टर्स नहीं, सॉरी, वो तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के कैटेगरी में आ गए. डेट के लिए कौन कौन होते हैं? बैंक होते हैं, या फिर देर आर अदर पीपल ऑल्सो गिव दैट गिव डेट. सम कंपनीज हु गिव डेट्स, मतलब वैसे भी कंपनीज होती हैं जो डेट प्रोवाइड करती है एक इंटरेस्ट रेट पे विच इज लोअर देन बैंक.
मतलब जब उसका रीपेमेंट, अभी लोन नोट्स तो इजी है, इट्स एज गुड एज कि मेरे को लोन पे ऑफ करना है इंटरेस्ट देख के। बैंक में ज्यादा रहता है, कंपनी थोड़े कम में प्रोवाइड करने का ट्राई करती है, दैट्स इट। फिर आते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स कैन देख दीज कैन बी ईदर डेट और इक्विटी। जो डेट हो, जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं ना, दे कैटेगराइज, दे हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ इक्विटी ऑल्सो एंड डेट ऑल्सो, थोड़ा थोड़ा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स में दो तरीके के होते हैं, एक होता है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो होता है ना, एन ऑब्लिगेशन टू रीपे प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये देख, तो ये होते हैं रिडीमेबल। तो जो मैं बोला ना कि दो कैटेगराइजेशन होते हैं, कि डेट भी हो सकते हैं, इक्विटी भी। तो जो रिडीमेबल होते हैं ना, दे कैटेगराइज एज डेट, कि मतलब मेरा ऑब्लिगेशन है कि मुझे पे बैक करना ही पड़ेगा, ऐसा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को। और जो इरिडीमेबल है, उनको ऑब्वियसली पे नहीं करना है, तो वो इक्विटी की तरह ट्रीट होंगे, बस दैट्स इट। डिविडेंड्स यूजुअली दिया जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, देना बेटर रहता है, और इन लोग को सबसे पहले मिलती है। प्रेफरेंस शेयर को पहले प्रेफरेंस दिया जाता है इक्विटी के, दैट्स इट। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, जाए दे शेयर कैपिटल टर्मिनोलॉजी, नॉमिनल और पार वैल्यू, मार्केट वैल्यू। शेयर्स आर सोल्ड द फर्स्ट इंस्टेंस बाय कंपनी एट एन इशू प्राइस। हाँ ये देख, तो ये जो मैं बोल रहा था ना, ये देख, शेयर्स आर सोल्ड इन द फर्स्ट इंस्टेंस बाय द कंपनी एट द इशू प्राइस, जो ओपनिंग प्राइस रहता है वो। दिस इज एटलीस्ट इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर बट ऑफन एक्सीड्स इट। ये देख, और उसके बाद बेसिकली आईपीओ जैसा। आईपीओ इज इनिशियल प्राइस ऑफरिंग, जब एक शेयर, जैसे कंपनी लिस्ट जब होती है ना, Yeah, शेयर I know. स्टॉक मार्केट पे, पता है ना, ओके थैंक यू। जब लिस्ट होती है तो वो इशू प्राइस पे होती है, एंड धीरे धीरे उसका मार्केट वैल्यू बनते रहता है एज इट इज इन द ऑपरेशंस। मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर फ्लक्चुएट्स अकॉर्डिंग टू द सक्सेस एंड परसीव्ड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंपनी। ठीक है। अदर टर्मिनोलॉजी टू बी अवेयर ऑफ, इशूड कॉल्ड अप, पेड अप। ये एक बार देख लेते हैं। Issued share capital is the share capital that has actually been issued to the shareholders. The number of issued shares is used in the calculation of dividend. फिर आते हैं called up share capital is the amount of nominal value paid by the shareholder plus any further amount that they have agreed to pay in the future. And paid up nominal value which has been paid at the current date. This is अपना normal वाला। Issued में number of issued shares used in the calculation of dividend. एक मिनट। Issued share capital is the share capital that has actually been issued to the shareholders. This is, I think, the number of shares that has been paid to us, मतलब नंबर ऑफ शेयर जितना अपने को मिले हैं, और उस नंबर के ऊपर अपने को कितना, मतलब अभी शेयर प्राइस कितना चल रहा है, उसके बेसिस पे द नंबर ऑफ इशूड शेयर्स इज यूज इन द कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड्स। डिविडेंड कैलकुलेशन में ये हेल्प होती है कि अगर मुझे 10,000 शेयर इशू किए गए हैं और मुझे डिविडेंड ₹5 पर शेयर दिया गया है, तो 50,000 ऐसा। कॉल्ड ऑफ शेयर कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू पेड बाय द शेयर होल्डर प्लस एनी फर्दर पेमेंट। यानी कि अगर मुझे कुछ आगे चल के ऑब्लिगेशन है, या मतलब मैंने शेयर होल्डर को वादा किया हुआ है कि मैं इतना पैसा फिर से दूंगा, या मैं इतना पैसा अदर देन मतलब वो डिविडेंड दूंगा, तो दैट इज कॉल्ड ये शेयर कैपिटल। ये बहुत रेयर होता है। नाउ दिस अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ शेयर्स, ये एक बार पढ़ तू, लाउडली पढ़। हाँ, If a company did issue shares at the nominal value, the double entry to record this rising of finance would be debit cash, credit capital, share capital. So debit हाँ, cash is basically issue price into number of shares, and credit share capital is nominal value into number of shares. And in reality, companies generally issue shares at a price above their nominal value. This is referred to as issuing shares at a premium. so The this is uh, at par. Basically the amount here will be the same in both the cases। इजी डबल एंट्री निकल जाएगा। इस केस में क्या होता है, दिस इज व्हाट एक हैपेंस second. इन रियलिटी। हाँ बोल बोल। Uh, like, what are you saying? Issue price into like how is the price the same? If
हाँ, We are सो like, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग कि इट इज एन अजम्पशन दैट दे आर मेकिंग कि हमने एट पार ही दे दिया। बेसिकली हमारा नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस दोनों सेम था, ऐसा ये बोलना चाहते हैं। बट ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर इज द बेस वैल्यू, इज एज वेल एज द बेस वैल्यू। इशू प्राइस इन द सेंस कि तूने कितने पे खरीदा। नाउ लेट्स से या सॉरी, तेरे को कितना मिला, बिकॉज हम लोग कंपनी है ना, तो हम लोग कंपनी के मतलब पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। तो अपने को कितना कैश अंदर मिला, हमने, यानी कि अगर एज एज द बायर ऑफ द शेयर्स, इफ वी आर पेइंग फॉर द शेयर कि मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो मैं इतना पे कर देता हूँ, तो कंपनी को वो पैसा मिलता है ना। तो पहले मैं एज अ बायर बता रहा था, अब मैं एज कंपनी बता रहा हूँ कि एज कंपनी जब मुझे वो पैसा है फ्रॉम द बायर मिलता है, तो लेट से मुझे आज स्टॉक मार्केट का वैल्यू, एक्सेल खोल लेता हूं मैं। लेट से आज स्टॉक मार्केट में मेरा शेयर का वैल्यू 122 है, लेकिन मेरा बेस इशू प्राइस, सॉरी नॉमिनल वैल्यू जो था वो मेरा 100 का था, बराबर है। बेस प्राइस वॉज 100, आज मेरे शेयर प्राइस का वैल्यू है 122। तन्वी ने मेरे से खरीदे 1000 शेयर्स, तो आज के डेट पे मुझे कैश कितना मिला, 1,22,000। लेकिन मेरा नॉमिनल प्राइस कितना था, 1 लाख का। यानी कि मुझे प्रीमियम कितना मिला, मुझे प्रीमियम जो मिला है वो मिला है 22,000 का। और ये चीज एवरी मिनट, एवरी 5 मिनट्स में फ्लक्चुएट होती रहती है। क्योंकि जब तूने खरीदा तेरा प्राइस हो गया 122, जब मैं खरीदा मेरा प्राइस था 121, मेरी मम्मी ने खरीदा मेरा प्राइस, उसका प्राइस था 125। तो दैट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग, ऐसा। सो इफ यू सी द ट्रांजैक्शन और इफ द डबल एंट्री, दैट वुड बी कैश अकाउंट डेबिट। क्योंकि देख तेरे कंपनी को पैसा अंदर कितना मिला, 122, तो कैश अकाउंट डेबिट 1,22,000। लेकिन तेरा इज्जत से पैसे तेरे को मिलने कितने चाहिए थे, देखो एक्चुअल में तेरा बेस प्राइस था 1 लाख का, लेकिन बिकॉज तेरा आज दिन अच्छा था और तेरा शेयर प्राइस का वैल्यू ऊपर था, तेरे को प्रीमियम मिला कितने का, 22,000 का। और यही सेम चीज पता है संजय, उल्टी भी हो सकती है। यूजुअली होती नहीं है लेकिन उल्टी भी हो सकती है कि कैश अकाउंट डेबिट, इक्विटी अकाउंट क्रेडिट। लेकिन आज तेरा शेयर प्राइस का फॉल हो गया, आज तेरा शेयर प्राइस चला गया नीचे, 95,000 पे गिर गया, इशू प्राइस था 1 लाख का, तो उल्टी वो हो जाएगी, प्रीमियम नहीं मिलेगा, ऐसा। ठीक है ना। बट ये यूजुअली होता नहीं है। This is not usually that happens because base price is something that they let it go hand in hand with this amount, जो जब फॉल होता है ना, सो द कंपनी से कि यही मेरा बेस वैल्यू है, ऐसा। इट्स क्वाइट अ ट्रिकी कॉन्सेप्ट। टीवायू वन सॉल्व करते हैं, लेट्स सी वेदर वी आर एबल टू सॉल्व इट। ठीक है। Bourbon company issued 2,25,000 shares at a price of 1.75 each. Unmute कर। yeah. मेरे को बस इसमें तू कैसे करेगी, देख इन्होंने बोला शो दिस ट्रांजैक्शन यूजिंग लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट्स भूल जा। मैं बोलता हूं कि लेट्स गो इन सिंपल टर्म्स, कि अपन अकाउंटिंग एंट्री के हिसाब से जाते हैं, ठीक है। Mm. बता। So basically, the price of a share is 25 cents, परफेक्ट। but we are selling them at 1.75 each. हम्म। So basically, we are like benefiting like 150 per 1.5। share. Yeah, 1.5 per share. ठीक है, तो अभी So एंट्री one क्या point. होगी। Uh, so एक second. So 20K into हाँ, कुठे गेलं ते? अरे इसको हाँ, हाँ, 20K into 1.75 is the cash,
like debit cash, and then we have share capital, which is uh, uh 20,000 into 25, and share 0.25, premium is, 0.25. yeah, 0.25, Hmm. and share premium is like two 20,000 into 1.5. 2 lakhs into 1.5. Yeah. ठीक है. देख तुला see, do you think it is right what they have done? Yeah. You think it is right? See, cash account debit 3,50,000. Share capital, Okay. as you said, 50,000. मतलब 2 lakhs into you said 0.25, so that is 50,000. And Yeah. share premium it is कितना? 3 lakhs. Yeah. तो बस वही है. समझा? Yeah, but then they would actually ask us to like um an exam, probably they'll ask us to like maybe show in ledgers. So like बट एमसीक्यू एग्जाम है ना, तो लेजर में कैसे पूछेंगे मतलब. no, but then no MCQ are here, but then we need to show workings and shit. ओके. Like it's ओके. like a written paper. ओके. ओके. ठीक है. ठीक है. नो इश्यूज. ledger, you know na how to create a ledger. This is the debit side, this is the credit side. If this is the transaction, if this is the journal entry, तो ये चीज क्रेडिट में जाएगी, ये चीज डेबिट में जाएगी. पता है ना. Yeah, yeah. ठीक है. ठीक. Anyways, it's fine if we don't do it. Whatever. Rights issues. Now what is a right issue? Right issue, the offer of new shares to the existing shareholders in proportion to their existing shareholding at a standard price below the market. Acha. Now, rights issue is not like a bonus issue. So there are two types of issues that take place in the company: rights issue and bonus issue. I have stopped the screen sharing. In bonus shares, na, when bonus shares are issued, na, they are giving you free shares. कि भाई ले ले, तेरे को बोनस शेयर्स हैं, एंजॉय कर. जैसे लेट्स से इन अ कंपनी यू हैड 100 shares. After some time, company issued bonus shares. Ki for every 5 shares held, you will get one bonus share. For every 5 normal share held, you will get one bonus share. So how much bonus share did you get more? 100. 100 into 1 divided by 5. तो यू गॉट मोर 120. अभी तेरे पोर्टफोलियो में लेट से टाटा, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन लेट से टाटा के पहले थे 100 शेयर, लेकिन उसके बाद बिकॉज ऑफ बोनस इश्यू अब तेरे पास हो गए 120 शेयर्स. पहले 100 शेयर थे, अब बिकॉज ऑफ बोनस इश्यू तेरे पास अचानक से फ्री में 20 शेयर्स मिल गए. शेयर का प्राइस आज भी 155 है, और 120 मिलने के बाद भी 155. मतलब अज्यूम करके चल रहा हूँ कि अगर तेरे पास 100 शेयर भी हो जाए तो भी तेरा प्राइस 155 होता, बोनस शेयर में तो भी तेरा प्राइस 155 है. और यहाँ पे देखो फ्री में पैसा मिल गया. बोनस शेयर इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू अ पर्सन व्हेन व्हेन वी आर इन्वेस्टिंग, एज द नेम सजेस्ट बोनस. लेकिन राइट्स इशू या राइट शेयर्स वो नहीं होते. राइट्स इशू आर कंप्लीटली डिफरेंट टू बोनस शेयर्स. राइट्स इशू में शुरुआत वैसी की वैसी ही होती है जैसे बोनस की हुई थी. राइट्स की शुरुआत ऐसी होती है कि फॉर एवरी 5 शेयर यू विल गेट 1 शेयर, तो तुझे 20 शेयर्स मिलते हैं. लेकिन इन राइट शेयर्स पीपल आर गिवन एन ऑप्शन कि वेदर और नॉट यू वांट टू बाय दिस शेयर. एक मिनट ना, मैं थोड़ा फ्लो टूट गया. पहले तेरे पास 100 शेयर थे Wait, 155 did we के. just skip right issues? नो, वी आर डूइंग इट. राइट शेयर में तेरे को बता रहा हूं. Okay. राइट शेयर्स में अभी क्या था मैं, हाँ, राइट शेयर्स में दे गिव यू एन ऑप्शन कि अभी आपको वापस एक बार 20 शेयर्स मिलेंगे, लेकिन अब आपको ये 20 शेयर्स फ्री में नहीं मिलेंगे. देखो अभी ना शेयर मार्केट में भाव चल रहा है 155 का.
हम आपको ये 20 शेयर देते हैं सिर्फ 100 में, डू यू वांट टू टेक इट? ऐसा मतलब अगर आप बाहर जाओगे ये शेयर खरीदने को, आपको 155 का मिलेगा, लेकिन क्योंकि आप हमारे प्रीवियस शेयर होल्डर ऑलरेडी हो, तो हम आपको और 20 शेयर्स दे रहे हैं, लेकिन एट अ डिस्काउंटेड प्राइस 100 में। बस दैट इज कॉल्ड राइट्स शेयर्स। Yeah, but एंड then we दैट इज, already had like 120 shares with, and on top of that, we are getting more 20 like at a discounted price. हाँ, Right. बट व्हाट वाज Okay. हैपनिंग इन द बोनस इशू, फ्री में मिल रहे थे सब कुछ, फ्री में, कुछ पैसे देने की जरूरत ही नहीं है, फ्री में। यहाँ पे बस एक डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है ऐसा। और उधर भी तेरे को राइट है कि तेरे को चाहिए या नहीं चाहिए ऐसा। अभी you can just you read this rights issue now. I have explained you everything. Just see if it matches with everything that I've said. Sorry, पढ़ना, what? read this, पढ़ना ये पूरा अभी। Okay. Yeah, yeah, yeah. Right issues. A right issue is the offer of new shares to existing shareholders in proportion to their existing shareholding at a stated price, normally below market value. The advantages are a right issues is the cheapest way for a company to raise finance through the issue of further shares. A right issues uh, a right name. Sorry, give me a second. यहाँ से A right राइट, issue पढ़। to the existing shareholders has a greater chance of success compared with a share issue to the public. बराबर ना। Disadvantage. Why would anyone leave the opportunity कि यार मेरे को इतनी बड़ी कंपनी के शेयर्स इतने चीप प्राइस पे मिल रहे हैं ऐसा, है ना? Yeah, but then why would companies sell it at like a lower price than like just give it to like other people? Because they want to raise finance, right? And having a rights issue, क्या क्या हो जाएगा कि अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनके सामने हमारी इज्जत बढ़ जाएगी कि भाई मतलब कितना अच्छे हैं भाई कि यू नो कि ये कंपनी मेरे को मतलब राइट्स इशू दे रही है, बोनस भी दे रही है, तो मुझे इसमें कंपनी में और इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है। Right. या फिर ऐसा भी हो सकता है ना कि अगर मैं बाहर ये शेयर्स बेचने को जाऊंगा, शायद मेरे उतने सेल नहीं होंगे। उससे अच्छा मैं इन लोग को लालच दे देता हूँ अंदर ही कम प्राइस पे देने का ऐसा। Okay. Disadvantages are a rights issue is more expensive than issuing debt. Second, it may not be successful in raising the finance required. A हम्म, rights issue is accounted for in the same way as a normal share issue and therefore has exactly the same impact on the statement of financial position as an issue at full price. ठीक है। So basically, it's like when you issue a share, like what kind of हम्म entry pass? Like I don't think they would ask that, but okay. हम्म। इज दैट अ क्वेश्चन टू मी? नो ना। Yeah, अच्छा, व्हाट काइंड ऑफ एन एंट्री आई वुड पास? yeah, but then I don't think they would be asking that right now. We कैश are like अकाउंट in डेबिट शेयर कैपिटल। okay. कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल ना, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। एंड तेरा कैश मतलब तेरे को पैसे अंदर आ रहे हैं ना, लोग तेरे में Yeah, इन्वेस्ट कर रहे हैं और तू शेयर कैपिटल दे right. रही है। अब अगर तेरे में प्रीमियम है, अगर लोग मतलब प्रीमियम पे खरीद रहे हैं ज्यादा पैसे दे के, तो ऑब्वियसली तू प्रीमियम अकाउंट बना देगी ऐसा। अभी ये TYU, upon the incorporation in 2014, JD Company, a limited liability company, issued 1050 cents shares at a nominal value, बराबर है। Needing further funds in 2015, it made rights issue of 1 for 5 at $0.75. This offer was fully taken up। ठीक है, ये ऑफर फुल्ली लोगों ने ले लिया। अभी नाउ योर क्वेश्चन वुड बी, मुझे पता है ये आएगा कि जब शेयर 50 सेंट्स का मिल रहा था, तो ये 0.75 पे लोगों ने क्यों खरीदा राइट्स इशू पे, है ना? No, wait, give me a second. I'll read it and I'll get back to you.
ओके, रीड। Okay. So basically, in 2014, you're getting like per share for 50 cents, right? Yeah, but then in 2015, it needed like the company needed more money, so it gave a right issue where the customer gets 5 shares instead of only one for 0.75. नो, No, 5 shares इंस्टेड ऑफ वन, अरे नहीं भाई, no, राइट्स I इशू का said it. मतलब होता है Right. फॉर एवरी 5 shares दैट यू आर होल्डिंग आई विल गिव यू 1 share। बेसिकली तेरे पास अगर 5 चॉकलेट है, और तो बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि फॉर एवरी 5 चॉकलेट दैट यू विल आई विल गिव यू 1 चॉकलेट, ऐसा। Okay, सो fine. वैसा होता है। सो फॉर एवरी 1,000 shares हेल्ड बाय पीपल आई Hmm. हैव टू, सॉरी, फॉर एवरी फाइव Yeah, शेयर्स आई because एम गिविंग वन। no, because सो फॉर तभी तक एवरी, I hmm. Yeah, no, फॉर but then एवरी, तभी तक एक सेकेंड बट तभी तक आई थिंक शेयर के प्राइस बढ़ गया होगा इसलिए। नो। हाँ नहीं, बिकॉज ये 5 सेंट्स है ना, ये नॉमिनल वैल्यू है, मतलब स्टार्टिंग का वैल्यू 50 सेंट्स। या दैट इज नॉट द मार्केट वैल्यू, जो मार्केट में, शेयर मार्केट राइट। में चल रहा है वो वैल्यू नहीं है, दिस इज जस्ट नॉमिनल वैल्यू। मार्केट वैल्यू ऑब्वियसली हायर होगा, इसलिए इसलिए राइट्स इशू हुआ है, ठीक है ना। सो व्हाट अकाउंटिंग एंट्रीज आर रिक्वायर्ड इन 2014 एंड 15, इलस्ट्रेट द रेलेवेंट सेक्शन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट द ईयर एंड ऑफ 15। कंपनी इशूड इतने शेयर्स एट नॉमिनल वैल्यू, पहले तो बता, सॉरी। एंट्री बता। फॉर व्हाट? लाइक 1000 into 50 is like 500 बट 500 वॉट, अकाउंटिंग एंट्री पूछा, अमाउंट नहीं पूछा मैंने, 500 अमाउंट। issued 1000 at nominal value. Okay, so debit cash 500 and credit share capital. लेट्स सी whether you are right or not। परफेक्ट, इन 2014 यू आर करेक्ट। अभी 50, अभी 15 में देता क्या होता है। Um, so they're getting 0.75 the company. So uh इजी है, एक बट कितनी शेयर्स बिकता है इतने? सोच ना। फॉर यू हैड 1,000 शेयर एंड विच वॉज फुल्ली टेकन अप, बराबर, सॉरी, यू हैड 1,000 शेयर उन्हें इशू किए थे जो लोगों ने खरीदे। Now for every 5 shares you are giving them 1 share at a price of 0.75। सोच ना। Oh, हो गया है भाई, हो गया है। not like oh, but like oh, 200. 200, are you sure? No, see, you divide it by like, I went Are you sure it's 200 shares? uh, एक second. I need my calcium. Don't do this to me. Why are you doing this to me? Yeah, it's 200. What do you mean? हाँ, I गुड गुड, तो आई एम जस्ट कंफर्मिंग कि आर यू श्योर। ओके, 200 है तो what 200 है, 200 इंटू 0.75, व्हाट इज दैट, 150 आई गेस ना। uh 200 into 0.75. हाँ, 150. 150। तो नाउ व्हाट इज द अकाउंटिंग एंट्री दैट यू विल मेक। कैश अकाउंट डेबिट 150, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100, शेयर प्रीमियम 50। ये देख, बराबर बोला मैंने। Right, right. अभी Yeah. मैंने
मैंने पता है बोला था कि हम लोग ये पहला अजम्पशन करते हैं कि ये एट पार गया है। नेक्स्ट अजम्पशन है कि ये प्रीमियम पे गया है। एक होता है जो लॉस पे जाता है, लेकिन वो यूजुअली कंसिडर नहीं होता बिकॉज हमारा नॉमिनल वैल्यू मतलब स्टार्टिंग का वैल्यू, एंड ये यूजुअली कंपनीज के लिए होता है जो मतलब इशू कौन करेंगे, बोनस शेयर्स और राइट्स शेयर्स इशू कौन करेंगे, जो कंपनीज अच्छे खासे पैसा कमा रहे हैं, तो फिर वो लोग मतलब कम मतलब उनका शेयर प्राइस का वैल्यू नीचे जाएगा तो वो लोग नहीं करेंगे ना इशू, इसीलिए। नाउ लास्ट इज बोनस इशू। बोनस इशू बिकॉज इट बीइंग अ फ्री इशू, बिकॉज इट बीइंग अ फ्री इशू, तेरे को कोई कैश अंदर नहीं आता एज अ कंपनी। देख मैं तो यहाँ पे बोला पता है कि एज अ कस्टमर और एज अ सॉरी एज अ शेयर होल्डर, सॉरी कस्टमर इज अ वेरी वेरी बैड वर्ड, एज अ शेयर होल्डर यू आर जस्ट गेटिंग फ्री फ्री के शेयर्स, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। इफ तेरे को फ्री के शेयर्स मिल रहे हैं एंड यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, सो कंपनी विल नॉट रिसीव एनीथिंग, बराबर? डज दैट Sorry. मेक सेंस टू यू? आई सेड बोनस शेयर्स के टाइम पे तेरे को फ्री के शेयर्स Yeah. मिल रहे थे, यू डिडंट हैव Right. टू पे एनीथिंग, बिकॉज यू डिडंट हैव टू पे Right. एनीथिंग, Right. कंपनी विल नॉट रिसीव एनीथिंग। बिकॉज कंपनी विल नॉट रिसीव एनीथिंग, तेरे कैश का तो सवाल ही नहीं आता। तो एंट्री क्या बनती है? शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ऐसा, बराबर? Yeah. शेयर प्रीमियम डेबिट में क्यों गया? क्योंकि अब तेरे को प्रीमियम पे पैसा मिल नहीं रहा है, जा रहा है ना, इसलिए। बस और कुछ नहीं। TYU 3। Yeah, बोल but बोल। then, like if money is not coming in and if money is not going out, why हम्म can't they just uh write एक ही like share capital like दोनों जगह पे? तू कैंसिल आउट कर रही है शेयर कैपिटल को? Yeah. तेरा शेयर कैपिटल तो होगा ना, तेरा शेयर कैपिटल Okay. तो होगा। अब Right. अगर तू डेबिट और क्रेडिट दोनों करेगी तो फिर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये क्या है भाई? ऐसे थोड़ी। Yeah, no, but then see, okay, and okay, see. अभी if you're going giving out shares बराबर, हम्म तो like and money is not coming in. So like हम्म usually, see, if you give out goods to a customer and then that customer is not giving you money, you हम्म। usually just write yeah, the name of the customer. Okay. But then it her why can't like जब कस्टमर okay, तेरे को पैसा फिर से देता है तो वो तेरे पहले वो रिसीवेबल्स में होता है, फिर वो तेरा कैश में जाता है, बराबर? yeah. अब वो दोनों है तो एसेट साइड में ही, लेकिन फिर भी कैश बढ़ा और रिसीवेबल्स कम हुआ ना, जैसे बोलेगी, लेकिन तो एसेट पे तो नेट इम्पैक्ट तो जीरो का ही आया, लेकिन फिर भी तूने Okay. अकाउंटिंग एंट्री तो पास की ही ना। True. तो अब ये Oh, ये जो चीज है ये तेरी सेम ही चीज हो रही है, लेकिन ये चीज तेरी लायबिलिटी साइड में हो रही है। okay. बस उतना ही है। ठीक है। डिविडेंड। डिविडेंड इज समथिंग दैट कंपनी हैज टू पे बट इज नॉट एन ऑब्लिगेशन टू पे। यूजुअली Yeah. डिविडेंड तभी पे किया जाता है जब कंपनी के प्रॉफिट्स होते हैं। लॉस मेकिंग कंपनी यूजुअली डिविडेंड पे नहीं करती और करना भी नहीं चाहिए। ठीक है। अब डिविडेंड जब पे करना होता है तो ऑब्वियसली मैं कैश एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट करूंगा, और जो मैं डेबिट करूंगा वो मैं करूंगा रिटेन्ड अर्निंग्स को। इतना याद रखना, ठीक है ना? विल डेबिट द रिटेन्ड अर्निंग्स, क्रेडिट द बैंक। व्हाई डेबिट द रिटेन्ड अर्निंग्स? बिकॉज प्रॉफिट कमाने के बाद वो प्रॉफिट का बैलेंस अपन रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर करते हैं, बराबर? Sorry. जब तेरे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस Yeah. बनता है, तो प्रॉफिट Yeah. जब होता है तो वो प्रॉफिट तू तेरा रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर करती है। Yeah. सो उस टाइम पे ट्रांजैक्शन क्या पास होती है? PNL अकाउंट डेबिट टू रिटेन्ड अर्निंग्स, टू रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट क्रेडिट। दिस इज द एंट्री दैट you pass while transferring the profit. Okay, you know what? I didn't know about this वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी transaction. गुड। रुक जा। No.
रुक जा, Okay. तूने तेरा 12th स्टैंडर्ड क्लियर किया है? Yeah, but then we didn't have this. बैलेंस शीट बनाई है ना 12th स्टैंडर्ड में? Yeah, but then yeah. पीएनएल बना दी थी, बैलेंस पीएनएल बनता था। Yeah. पीएनएल बनता था, पीएनएल का जो प्रॉफिट Yeah. होता था वो अपन अपने कैपिटल में डालते थे, ये याद है? Yeah, P&L we used to put in balance sheet, शेवटी. कैपिटल, एग्जैक्टली। सो दिस इज द सेम थिंग दैट यू हैव टू डू ना बाबा। पीएनएल का जो प्रॉफिट है Okay. वो तेरे को, अब बस यहाँ पे उन्होंने नाम चेंज किया है, कैपिटल को उन्होंने कर दिया है रिटेन्ड अर्निंग्स। दैट्स इट। Oh, So okay. this is the entry that you have to pass. P&L account debit, retained earnings account credit. अब जब डिविडेंड पे होगा कस्टमर्स को, सॉरी शेयर होल्डर्स को, माय बैड, व्हाई एम आई सेइंग कस्टमर्स, तो उस टाइम पे रिटेन्ड अर्निंग से पैसा जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग से पैसा जाएगा, तो रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। ठीक है? ऑल गुड? Yeah, yeah. फिर आते हैं लोन स्टॉक। लोन स्टॉक, दे आर जस्ट लोन्स, बेसिकली डेट होते हैं वो। और ये सबसे सिंपल चीज है, ये देख, लोन मिला है मतलब क्या हुआ है? पैसा अंदर आया है। अनम्यूट, अनम्यूट ही रखना अपने आप को, इट्स फाइन। Okay. कैश डेबिट, पैसा अंदर आया है। और Yeah. तू अब तेरा एक डिबेंचर्स वहां पे खड़ा करती थी, डिबेंचर्स या बैंक लोन या डेट वहां पे खड़ा करती थी अपने लायबिलिटी साइड में, तो उसका बस यहाँ पे नाम इन्होंने रखा हुआ है नॉन करंट लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट टू नॉन करंट लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट। सेम चीज अभी, अभी उस लोन के ऊपर जब तू लोन को पे ऑफ करेगी, लोन को पे ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट को, तब क्या होगा? लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, कैश से तू पे ऑफ करेगी, कैश एंड बैंक से तो कैश एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट। अभी इस इन दोनों चीजों के अंदर एक चीज होती है, एक वो सेकंड, एक चीज। सेकंड, wait. हाँ बोल। I didn't hear you well. वापस बोलो लास्ट वाला. अरे आई एम सेइंग कि ये जो दो चीजें हैं, कि व्हेन यू Yeah. पे ऑफ द लोन, एंट्री इज Yeah. नॉन करंट लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश, बराबर? Yeah. अभी इन दोनों चीज के अंदर एक और छोटी सी चीज होती है, वो होता है इंटरेस्ट पेमेंट टू द बैंक। तेरे को सिर्फ प्रिंसिपल नहीं पे करना है, तेरे को इंटरेस्ट भी पे करना है, बराबर? Hmm. अब ये जो तेरे को Right. इंटरेस्ट पे करना है, उसका एंट्री क्या होगा? फाइनेंशियल चार्जेस अकाउंट डेबिट, मतलब तेरे को पीएनएल को डेबिट पास करना है। ठीक है? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट, मतलब यही यही जो है ना, ये देखिए, ये या तो इस लायबिलिटी में एड अप हो जाएगा, या फिर तेरा कैश से तेरे को पे करना पड़ेगा। Hmm. मतलब अगर तू इंटरेस्ट को अभी के अभी पे कर रही है तो तेरा कैश से पैसा कम हो जाएगा, लेकिन अगर तू बस तेरे अगर इंटरेस्ट को तू बाद में तेरे प्रिंसिपल अमाउंट से माइनस करने वाली है, तो वो तेरे करंट लायबिलिटीज में एड अप होते जाएगा। ऐसा, इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है ना? Uh, okay. बोल बोल, डाउट पूछ, डाउट पूछ। Doubt. Okay, like वापस कर जो भी तूने एरो किए हो वापस and explain. व्हाट आर फाइनेंशियल चार्जेस? Yeah. वो बता। Uh, financial charges are basically the interest amount, like uh बराबर है। the original amount and the अभी interest ये amount जो we इंटरेस्ट get. अमाउंट है, तू तेरे 12th स्टैंडर्ड में भी तेरे पीएनएल डेबिट में डालती थी, Yeah. सेम करना है, पीएनएल डेबिट में डालना है। लेकिन Hmm. हमेशा हम अकाउंट्स में डबल, क्या बोलते हैं, वो डबल एंट्री देते हैं, या मतलब ऐसा वो डबल इफेक्ट देते हैं। अभी इसका सेकंड Yeah. इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? अगर तू इंटरेस्ट को आज के आज पे कर रही है तो तेरा कैश से जाएगा, तो कैश Yeah. अकाउंट क्रेडिट। लेकिन अगर तू उस इंटरेस्ट को आज पे नहीं कर रही है और बाद में पे हाँ. करने वाली है अपने लायबिलिटीज में से, Right. तो क्या हो जाएगा? करंट लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट, कि तेरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। ऐसा, जस्ट बस Yeah, but उतना ही है। yeah, but no, but like cash is going out right now, right? अरे दो चीजें होंगी ना कोई भी, Yeah, या तो तू एक तो इंटरेस्ट, cash can go out or you can just add it to your liability, right? बराबर, तो हाँ. इधर ऑफ द टू Okay, yeah. होगा ना।
Right. ऐसा। अभी Okay, moving TYU5 on. पढ़। Custard Creameries is an incorporated business which needs to raise funds to purchase plant and machinery. On 1st March 2015, it issued $150,000 on 10% loan notes, redeemable in 10 years' time. Interest is payable half yearly at the end of August and February. बराबर। इसमें तेरे को अकाउंटिंग एंट्रीज पास करनी है। मैं तेरे को इन्होंने बोला है अकाउंटिंग एंट्रीज पास करने को, और उसका एक्सट्रैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन पे कैसा दिखेगा वो बताओ। वो सब क्या, वो Hmm. सब जाने दे एक्सट्रैक्ट वगैरह। मैं तेरे को पूछता हूँ अकाउंटिंग एंट्री क्या पास करेगी इसके लिए। What accounting entry required in the year and show the land exact on the statement. Uh, so first of all, वही जो ऊपर दिए दोनों एंट्रीज। एग्जैक्टली तो बता ना, मुंह से बोल क्या है वो ओके, एंट्रीज। डेबिट कैश टू क्रेडिट नॉन ओके, राइट इट डाउन करंट फर्स्ट ऑफ ऑल। लायबिलिटी। राइट इट डाउन विद द अमाउंट। टेक्स्ट बुक मध्ये लिहू। किधर भी लिख। ओके, डेबिट कैश क्रेडिट करंट लायबिलिटी। ओके, वेरी गुड। अभी नाउ व्हाट यू हैव टू डू। 150 into 10%। For why? But why are you doing this? Because it is issued at $150,000 at 10% loan notes. तो मतलब उससे तेरे को क्या मिलेगा मल्टीप्लाई करने के बाद। Okay, well, give me a second. $150 से क्या मिलेगा? 150 से क्या मिलेगा नहीं पूछा मैंने, तूने बोला 1,50,000 इंटू 10%, उससे क्या मिलेगा। मैं ये तेरे को पूछ रहा हूँ उससे तेरे को क्या मिलेगा। कुछ नहीं। अच्छा तो हो गया अपना, इतना ही था अपना लोन। No, दैट वाज द ओनली थिंग दैट दे हैड आस्क्ड। no. तो और क्या इसमें एंट्री आएगा। दूसरी redeemable it एंट्री। in like 10 years time. Interest is payable half yearly at the end of August and February. And then we have like, oh, we have like debit finance charge and credit cash or a current liability. वेरी गुड वेरी गुड। तो अभी मुझे बता, तो पहले तो तू ये एंट्री को लिख अपने बुक्स में। पहले ये एंट्री लिखना है, उसके बाद अमाउंट पे आते हैं। एंट्री इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू। Okay. So cash to cash to uh non-current liability is 150,000. And then we have finance cost debit to cash. Are we giving them the यस। okay? Okay. So like the interest is payable half yearly at the end of August and February. Half yearly, so that's like 6 divided by 12. Like 6 months ka. So 150,000 into 10% into नहीं बराबर जा रही है करना। 15,000 divided by 12. 7,500. बराबर Wow. बराबर, ये अगस्त के लिए एंट्री बराबर है। तो ये सेम एंट्री तूने अगस्त में पास की, अभी फरवरी के Yeah, लिए but पास कर। what? Okay, but what? Like
Oh, for February also. Okay. बट विल यू रियली पास इट फॉर ये फेब्रुअरी अगेन 6 मंथ्स के लिए? क्या तू वापस 6 महीने के लिए पास करेगी Hmm. एंट्री? I shouldn't because February is like बट व्हाट इज योर December. ईयर एंड? My year end is 31st December. सो यू विल ओनली पास द एंट्री टिल 31st ऑफ ये मतलब वो दिसंबर ना? where are you going beyond that? अपन एंट्री कौन से बेसिस पे करते हैं? वी मेक वी Yearly डू basis. अवर अकाउंट्स ऑन द बेसिस Hmm. ऑफ एक्रूअल बेसिस। Yeah. बराबर है? Uh, ठीक है, एक्रूअल बेसिस पे करते हैं। लेकिन तेरे को इंटरेस्ट मिल रहा, इंटरेस्ट को पे ऑफ करना है फेब्रुअरी में, तो hmm. दिसंबर तक का ही दिखाएगी ना जो तुझे पे करना है आगे जाके। Yeah. मेरे मेरे हिसाब से तो सिर्फ 4 महीने का दिखना चाहिए। एम आई राइट? या ये देख 4 महीने का उन्होंने किया हुआ है। So like December, like because okay, since they're paying from August to February, so June, July, August, September, October, November, December, Jan, no, September, October, November, December, Jan. जैन तक जा ही क्यों रही है जब तेरा ईयर एंड दिसंबर है? Then okay, where are you getting the 4 months from? सितंबर, अक्टूबर, नहीं सॉरी एक मिनट, अगस्त में हो गया, सितंबर, अक्टूबर, August. नवंबर, दिसंबर। Okay, fine. We have those 4 months. Okay, फिर उसके ऊपर क्या? उसके ऊपर क्या मतलब? Like how do you like we? I know that we have like 4 months. So like interest accrual. So like what do you mean by interest accrual? तुझे इंटरेस्ट शो करना है ना बाबा, तुझे ये एंट्रीज पास करनी है, ये Right. अकाउंटिंग एंट्रीज। Hmm. तेरा एक इंटरेस्ट का एंट्री हो गया, अभी तुझे एक और इंटरेस्ट का एंट्री पास करना पड़ेगा, बट दिस टाइम यू विल पास इट फॉर ओनली 4 मंथ्स। Okay. है ना? तो ये Yeah. देख इन्होंने ऐसे 3 एंट्रीज पास किए हुए हैं। पहला 1,50,000 एज यू सेड वेरी राइटली, सेकेंड Hmm. वाला 7,500, एंड Hmm. फोर एंड ये थर्ड वाला Hmm. 5,000 So like abhi like मंथ्स के if you're लिए। paying who uh interest, so like why don't we just call it yeah व्हाट? cash? अगर हमारे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 7,500 जा रहे हैं सो तभी वी आर वेरी कॉलिंग इट गुड, डेबिट फाइनेंस कॉस्ट टू वेरी गुड, वेरी कैश. गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। क्योंकि उस टाइम पे तू जेन्युइनली पे कर रही है कैश। ओके. तुझे ये जो 5,000 है ना, ये देख ये जो 5,000 है ना, ये तुझे पे करना है। लेकिन कब पे करना है? फेब्रुअरी में पे करना है। हम्म. और हम राइट. तो बराबर है, वो चाहे करना है पे फेब्रुअरी में। हम्म. तो टेक्निकली तेरा क्वेश्चन बहुत बहुत सही है कि ये कैश आना चाहिए था और ये फेब्रुअरी में आना चाहिए था। लेकिन हम लोग हमारे बुक्स कब तक बना रहे हैं? 31st of December 15, दिसंबर. एंड वी मेक आवर बुक्स ऑन एक्रूअल बेसिस एंड नॉट ऑन रियल बेसिस। ओके. वी आर मेकिंग ऑन एक्रूअल बेसिस, यानी एक्रूअल बेसिस मतलब क्या रहता है? जो ईयरली. कैश पे नहीं हुई है उसको हाँ. भी एंट्री पास ऑन कर दो। जो 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 हाँ. जो कैश पे नहीं हुई है हम्म. उसको भी पास ऑन कर दो। ओके. दैट इज एक्रूअल बेसिस। अगर ये यहाँ पे ऐसा दिखते कि तुमको सिर्फ रियल बेसिस पे पास करना है, तो सिर्फ ये हम्म. 2 एंट्री आता, बात खत्म। लेकिन या. इट इज बाय अंडरस्टूड कि वी ऑलवेज मेक अवर ट्रांजैक्शंस ऑन एक्रूअल बेसिस, और इसीलिए हमें ये 4 महीने का दिखाना जरूरी है। अगर बट दैट वाज हमारा द ये बट अगर हमारा 4 महीने का हुआ ही नहीं है अभी तक. ओके. हुआ है ना, 4 महीने पेमेंट हुए तो है ना।
4 महीने, हाँ 4 महीने, 4 महीने तो हो गए ऑफ कोर्स, बट लेट मी कंटिन्यू माय क्वेश्चन। हम्म 4 महीने का पेमेंट हुआ ही नहीं है, बट देन वी नीड टू हम्म। एक्चुअली जस्ट राइट वो इंटरेस्ट अक्रूवल, बिकॉज हमें वो सब अगले वाले ईयर में कैरी फॉरवर्ड करना है, एंड देन वी ऐड मोर 2 मंथ्स एंड देन वी पे द बिल, ऐसा। नहीं, वैसा नहीं होगा, क्योंकि हम हमारे ओके। बुक्स हमेशा एक्रूअल बेसिस पे बनाते हैं, इसलिए हमको ये 5,000 दिखाना जरूरी है। नेक्स्ट ईयर, ओके। नेक्स्ट ईयर यू विल ओनली पे फॉर 2 मंथ्स, और वही आएगा। ठीक है, दिस ओके इज हाउ तो अकाउंट्स वर्क। ऐसा हमको शो करना रहता है, ठीक है ना। अ, I have a very dumb question, so it's better if you stop recording right now. पूछना, पूछ, उसमें क्या है, पूछना, डम क्वेश्चन तो डम No, क्वेश्चन it's पूछ। going to be on YouTube for like years. अरे पूछ भाई, फर्क नहीं पड़ता, कोई देखता नहीं मेरी Okay. वीडियोस, पूछ। Okay. Um, हम्म so basically, if you're saying that accrual basis पे है, and हम्म। then जो uh, uh, no, okay, it's fine. नहीं. See, you said accrual basis पे है, but then interest on accrual. Uh, uh, आगे तो बढ़, क्वेश्चन तो पूछ। नो बट सी, पैसे तो इस साल में ही जा रहे हैं ना बाहर, पर जो 4 महीने का बराबर है, पैसा है उसी 4 महीने में तुम लोग दे रहे हो। बराबर है, बराबर है, मैं एग्री कर रहा हूँ, मैं एग्री, मैं डिनाई कर ही नहीं रहा हूँ। कैश उसी टाइम पे बाहर जा रही है, मैं मना ही नहीं कर रहा हूँ इस हाँ। बात पे। हाँ, ईयर लेकिन एंड तक वो 5,000 बाहर जा रहा है। हाँ, हाँ, ठीक है। गियर में 5,000 बाहर नहीं जा रहा है, 5,000 अभी भी तेरे अंदर ही है, तेरे कंपनी के अंदर ही है, लेकिन वो एक्रूवल पे अंदर है, मतलब वो बाहर जाने वाला है। और जो चीज एक्रूवल ओ, बेसिस पे वो बाहर जाने वाली है, तो उसको अभी ही अकाउंट कर दो। दिखा दो कि बाहर चली गई वो, चले एग्जैक्टली, गया वो पैसा। एग्जैक्टली, ओ, एग्जैक्टली, ओके, समझ गया। एग्जैक्टली। ठीक है, नाइस। यस, दैट्स इट। Preference shares. If preference shares are redeemable, they are treated the same as loan notes. That is, they are recorded as a liability in the statement of financial position, and the dividend payments are treated the same as finance charges. If the preference shares are irredeemable, the shareholding and associated dividends are treated exactly the same as ordinary shareholdings, as explained above. See, जर preference shares redeemable झाले, then they are treated as loan notes. But if preference shares are treated as equity, म्हणजे if preference shares are irredeemable, then they are treated as equity. असं असतं, ठीक है। फिर आते हैं अदर रिजर्व्स। अदर रिजर्व्स में दो चीजें आती है, वन इज रिवैल्यूएशन सरप्लस एंड अदर इज रिटेन्ड अर्निंग्स। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस, ये तुझे पता रहेगा, तो अपने पीएनएल के बाद एक कॉलम रहता है, राइट, रिवैल्यूएशन सरप्लस का। सो इन दैट, हाँ। मतलब अदर्स के लिए, तो यहाँ पे उसके अंदर रिवैल्यूएशन सरप्लस आता है, इन विच दोज गेन्स विच आर बेसिकली इनविजिबल इन नेचर, जैसे अनरियलाइज्ड गेन्स ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हो गया, ठीक है ना। सो वो सब चीजें रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंडर आती है। एंड अनदर थिंग इज रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स में क्या आता है, रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर जो हमारे इंटरनल नेट प्रॉफिट्स रहते हैं वो आता है, अवर इंटरनल नेट प्रॉफिट्स वगैरह, वो सब चीजें इसके अंदर आ गई। ये दिस रिटेन्ड अर्निंग्स इज एज गुड एज 12th स्टैंडर्ड का कैपिटल। कैपिटल के अंदर अपन नेट प्रॉफिट ऐड करते थे वगैरह वगैरह, तो यही सब इसके अंदर करना, और लॉस माइनस करते थे, बस वही है। So in your statement of changes in equity, you have to prepare this equity share capital, share premium, revaluation surplus and retained earnings। इसके अंदर और दो दो चीजें ऐसे एक एक करके सारी चीजें आती रहेंगी धीरे धीरे करके। इसके अंदर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आ सकता है, वगैरह वगैरह, ये सब आ सकता है। अब ये उन्होंने एक बेसिक स्ट्रक्चर लेकिन दिया हुआ है कि बेसिकली बेसिक में इतने चार चीजें आती है, और लास्ट में खाली उनका टोटल तेरे को करना रहता है, बस वही है। ठीक है, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स पढ़ना।
um, income tax in the same way that individuals are subject to tax on their income. The income generated by a business entity is also subject to tax. Sole traders and partnerships. In the case of sole trader or a partnership, the tax charge is imposed upon the individual rather than the business. Consequently, if the business bank account is used to pay what is the personal tax liability, it will be accounted for as a form of drawings made by the business by the owner. Limited liability companies. In the case of a limited liability company, as it is a separate legal entity, if it can execute. No issues. Take your time. So this is normally referred to as income tax. Let us skip something. Um, ठीक है. okay. Consequently, the tax charge tax must be reflected in the statement of profit or loss as an expense, and any tax liabilities outstanding must be reflected in the statement of financial position. This is normally referred to as income tax. As it is a tax charge on the income of company, in the UK, this was traditionally referred to as corporation tax, but is now more commonly referred to as income tax. It should not be confused with the income tax paid by the individual employee on their salary and other earnings. The charge for income tax is based upon the level of profits earned by the company and the tax rates in the place at the time of calculation. Company shareholders, company year ends and tax year ends rarely match. Therefore, companies must estimate their income tax liability at the end of each accounting period and record an appropriate estimate of the liability likely to be paid. Hey, These bye. See, estimates are I'll tell you slightly what happens. Basically, कंपनी एस्टिमेट करता है कि मेरे को इतना टैक्स पे करने को आएगा. तो कंपनी हमेशा अपनी लायबिलिटी खड़ी रखता है कि मेरे को इतना पेमेंट करना बाकी होगा ईयर एंड पे, या मैं इतना पेमेंट करूंगा ईयर एंड पे. बराबर है. बट एक्चुअली उतना पेमेंट नहीं होता है. कई बार उससे ज्यादा होता है, कई बार उससे कम होता है. सो दैट्स वेयर डिफर्ड टैक्स ऑल्सो कम्स इन टू प्ले, जो एफआर में आएगा कॉन्सेप्ट. So in that case, they try to merge like the two concepts of income tax liability. मतलब जो इनकम टैक्स के टाइम पे तेरा लॉज एंड रेगुलेशंस के हिसाब से तेरे को पे करना है, एंड तूने जो एस्टिमेट किया हुआ है वो बस उतना ही है, बाकी कुछ नहीं. सो सो बेसिकली नाउ व्हाट इज द मतलब रिकॉर्डिंग. अपने को तो खाली अकाउंटिंग करना है ना. तो अकाउंटिंग के टाइम पे क्या ट्रांजैक्शन पास करनी है, अपन पीएनएल में दिखाएंगे. देखो, इनकम टैक्स चार्जेस अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स लायबिलिटी. मतलब अपन बैलेंस शीट में खाली इनकम टैक्स की लायबिलिटी खड़ी करेंगे और पीएनएल में चार्ज दिखाएंगे. ठीक है. फिर जब आगे चल के जब पे करने की बारी आएगी एक्चुअली इनकम टैक्स को, उस टाइम पे हम लोग खाली हमारी लायबिलिटी को हटाएंगे. इनकम टैक्स लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश. कैश क्योंकि कैश से पेमेंट हो रहा है, कैश एंड बैंक से मतलब पेमेंट हो रहा है. और लायबिलिटी इसीलिए क्योंकि सी, ऑन द बैलेंस शीट लायबिलिटी you always find amounts that you are going to pay, not the ones that you have paid, the amounts that you are going to pay in the future. है ना. सो इसीलिए इनकम टैक्स लायबिलिटी हमने फर्स्ट स्टेप में लायबिलिटी खड़ी करी, थोड़े टाइम के लिए पार्क करी, और फिर स्टेप 2 में हमें जब पे करने की बारी है तो हमें उसको खाली डी रिकॉग्नाइज करना है. ऐसा. आगे बढ़. step 3. यस. It is unlikely the actual charge will match the estimated liability. So the tax liability account will be left with the closing balance carried forward. This needs to be removed as the debt has been settled. That is, there should not be any carried forward balances because the tax authorities have been paid the correct amount. If there is an provision in the prior year, that is, the estimate was greater than the amount paid, there will be a closing credit balance carried forward. This is adjusted as follows.
debit income tax liability, credit income tax charge. स्टॉप स्टॉप स्टॉप। देख, मैं तेरे को इसको सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करता हूँ। तूने एस्टिमेट किया था कि तेरे को 2,000 का टैक्स पे करना है, लेकिन आगे चल के तेरे को पता चला कि ओ तुझे तो सिर्फ 1,000 का ही टैक्स पे करना है। शायद तूने कोई एस्टिमेशन में गलती गलती करेगा, या तेरे एक्सटर्नल ऑडिटर्स ने तेरे को आके बताया करेगा कि अरे तुम्हारे कैलकुलेशन गलत थे, तुमको एक्चुअली कम टैक्स पे करना था। अब जब तुझे पता चल गया कि तेरे को कम टैक्स पे करना है, तो अब क्या होगा? तू सबसे पहले तेरे लायबिलिटी साइड पे जो तूने इतना बड़ा बैलेंस दिखाया है 2,000 का, वो तू पहले कम करेगी। सो so you have to reduce the liability on your balance sheet. How will you reduce the liability on your balance sheet? By debiting that liability, बराबर? And you had claimed an expense, या no sorry, not claimed an expense, but basically तूने इनकम टैक्स चार्ज में तूने ज्यादा टैक्स पे करा, तो तेरा पीएनएल में थोड़ा कम पैसा, नेट आफ्टर टैक्स जो रहता है ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो तेरा बहुत ही छोटा दिख रहा था, बिकॉज तूने ज्यादा टैक्स का एक्सपेंस क्लेम किया था। अब जब तेरा टैक्स 2,000 से 1,000 का हो गया है, सो योर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ दैट। तो इसलिए उन्होंने बोला क्रेडिट इनकम टैक्स चार्ज। जो तूने पीएनएल में ज्यादा चार्ज दिखाया था, डेबिट, तूने पीएनएल में डेबिट दिखाया तो तेरा अमाउंट रिड्यूस हुआ ना। अब उसको तुझे कम करना है, सो उसको तू क्रेडिट करेगी, ऐसा। गेट इट? या फिर से समझाऊं तो बता। No, no, I got it. ओके, नाउ इन द सेम वे, शायद टैक्स अथॉरिटीज तेरे पास आके तेरे को बोलेंगी कि अरे तूने तो 2,000 के बोला है, लेकिन तेरे को एक्चुअली 3,000 का टैक्स पे करना है। तेरे एम्प्लॉयज ने गलत टैक्स एस्टिमेट किया था। अब जब तेरे एम्प्लॉयज ने गलत टैक्स एस्टिमेट किया था और तेरे को ज्यादा टैक्स पे करना है, तो तू क्या करेगी? तू तेरे लायबिलिटी साइड में तेरा बैलेंस बढ़ा देगी। सो इसीलिए इनकम टैक्स लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट, ठीक है? बिकॉज लायबिलिटी इज ऑन द क्रेडिट साइड, सो इनकम टैक्स लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट। In the same fashion, now you have to claim that expense for a after tax. मतलब not claim is not a right word, but you have to pay more tax. Now that you have to pay more tax, so your after tax profit after tax will reduce, because you have to uh, pay more tax. You will say income tax charge, and that will go on the debit side. ऐसा, ठीक है? ठीक है, Yeah. ओके। तो बस यही है बेसिकली। दिस इज व्हाट इनकम टैक्स एंड पेमेंट इज ऑल अबाउट। अभी ये देख, जीबी कंपनी commenced trade on 1st of January 14 and estimated that the tax payable for the year end 31st of December 14 was 1,50,000। उन्होंने क्या एस्टिमेट किया कि तेरा टैक्स पेबल इज 1,50,000। इस पे ध्यान देना। In September 15, the accountant GB company received and paid a tax demand for 1,63,000 for the year ended 31st of December 14। उसने पे कितना किया? 1,63,000। At 31st of December 15, it was estimated that GB company owed 1,65,000, owed 1,65,000 for income tax in relation to the year ended 31st of December 15। अब मुझे बता, हमने कितना टैक्स पे किया? देख, हमें भी क्या करना है? ड्रॉ अप द टैक्स चार्ज एंड इनकम टैक्स पेबल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st of December 14 एंड 15। बताओ Okay. एक second. आराम से।
So basically, it was estimated that we had to pay 1,50,000, right? हम्म But then, in September 2015, the accountant paid a tax demand for 1,63,000. So like we have paid that amount, barabar. right And then it was estimated that GB Co owed 1,65,000 per income tax in relation to the year ended 31st December 2015. हम्म right Okay. Okay. Excellent. तूने एस्टिमेट किया था 1,50,000 रुपए, लेकिन तेरे But को that was पे 2015, that was 2014, no? हाँ, बट तेरे को 2014 के लिए पे करना पड़ा 1,63,000। तो हुआ क्या? तूने ओवर एस्टिमेट Uh, किया था कि अंडर एस्टिमेट किया था? underestimate किया था. वेरी गुड। तो अभी अकाउंटिंग एंट्री क्या आएगी? Uh, debit income tax charge, credit income tax liability. वेरी गुड। अमाउंट? Amount. Um, 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 13. नाइस नाइस, वेरी गुड। आई थिंक यही होना चाहिए। ये देख, अंडर प्रोविजन किया था, देख प्रॉफिट एंड लॉस में बराबर। तो ये बेसिकली उन्होंने लेजर फॉर्म में बनाया हुआ है, और कुछ नहीं। हमने अंडर प्रोविजन किया था 13,000 का, भाई वही उन्होंने दिखा दिया वहां पे कि देखो भाई यहाँ पे अंडर प्रोविजन था 13,000 का। Hmm. बाकी ये 15 के लिए एक्चुअली आई डोंट अंडरस्टैंड। हाँ, ओके ओके, आई अंडरस्टूड। बेसिकली यहाँ पे ना ये लोग खाली खाली ये लेजर फॉर्म में बनाया हुआ है, तो इसलिए ये लोग टोटलिंग टोटलिंग करते जा रहे हैं। तो तेरे को सबसे पहले तूने पे किया 1,50,000। देख, जब तू एस्टिमेट करती है ना, तो सी दे हैव एस्टिमेटेड, तो दिस इज जस्ट द लेजर, दिस इज नॉट द अमाउंट दैट यू हैव पेड। द एस्टिमेटेड लेजर वाज 1,50,000। इसमें 13,000 ऐड हो गया, ठीक है? इसमें 13,000 ऐड हो गया, लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है? एट 31st of December 2015 इट वॉज एस्टिमेटेड दैट हमें 1,65,000 भरना पड़ेगा इन रिलेशन टू 31st of December 2015। तो यहाँ पे हमने एस्टिमेट किया था 1,50,000, यहाँ पे हमने एस्टिमेट किया 1,65,000, और यहाँ पे हमारा अंडर प्रोविजन तो था ही 13,000 का। तो हमें एक्चुअली पेमेंट कितने का करना है, ये वो लोग पूछ रहे हैं। तो हमें एग्जैक्टली अभी पेमेंट कितने का करना पड़ेगा इस सालाना में, करंट ईयर में? 178. नो, सी, वी हैव टू पे फॉर 2014। आई टेल यू हियर, एक मिनट। फॉर 2014 and Hmm. 2015, for 2014 you have to pay 1,63,000, and for 2015 you have to pay 1 lakh, you have to pay 1,65,000। however, हमारे जो बुक्स चलते हैं वो हमारे रियल टर्म्स में चलते हैं, बराबर है? तो इन टर्म्स ऑफ पीएनएल की बात कर रहा हूं मैं, एक मिनट, Yeah. इन टर्म्स ऑफ हाँ, इन टर्म्स ऑफ पीएनएल की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि तेरे ये वाले क्या बोलते हैं, वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, दैट इज ऑन कैरिंग फॉरवर्ड बेसिस। लेकिन जो तेरा पीएनएल होता है वो तेरा सिर्फ 12 महीने के लिए बनता है, बराबर है? सो फॉर 31st of December 2014 यू हैड एस्टिमेटेड 1,50,000। तो तेरा 2014 में इनकम टैक्स चार्ज खाली 1,50,000 का ही दिखेगा फॉर 2014। हाउएवर, जब तू 2015 में पहुंची, 2015 में ईयर क्या है हमारा? 1st of January 2015 to 31st of December 2015, बराबर? अनम्यूट ही रख अपने आप को। हाँ, Sorry, वापस बोलो. अनम्यूट ही रख और अपने आप को। Yeah. मैं बोल रहा हूँ 1st of January 2015 से 31st of Hmm. December 2015,
ये 12 महीना है, बराबर है, ये Yeah. तेरा ये तेरा ईयर है. सो in this year, what you realized in 2015, you realized Hmm. that you were liable to pay even more. So you were liable to pay 13,000 more. Yeah. बराबर है. एंड ईयर एंड पे तेरा 1,65,000 का एस्टिमेट तो था ही था. Hmm. तो दैट्स हाउ द टोटल 1,78,000 कम्स इनटू प्ले. कि ये तेरा 1,78,000 इनकम टैक्स चार्ज बन जाता है ऐसे. Yeah. ठीक है. But हम्म. वो जो 13,000 है वो तो लास्ट ईयर का था, but then हाँ, वो लास्ट ईयर का था. लेकिन उसका शौक तेरे को कब लगा? जब तू 2015 में पहुंची. 2014 में तो तूने एस्टिमेट किया था कि मेरा 1,50,000 ही है. तो तूने तेरे बुक्स में 1,50,000 ही बुक किया हुआ है. hmm. अब जब तू 2015 में पहुंची, तेरे अकाउंटेंट्स ने तेरे को बताया कि अरे मैडम, आपको 13,000 रुपये ज्यादा भरने हैं. जब तेरे को ये शौक लगा, तो तूने वहां पर तो तेरे 12 महीना बुक किया हुआ था, क्लोज हो गया था वो 12 महीना. अब तू उन 12 महीनों को हाथ नहीं लगा सकती, क्योंकि अब तू 2015 में आ गई है. तो अब ये 13,000 की जो एक्स्ट्रा तेरे को पे करना है, वो तेरी एडिशन है, वो तेरे को इस साल बुक करनी पड़ेगी. समझा? Okay. Yeah. ऐसा रहता है. अभी TYU 8, chalk company estimated last year's tax charge to be 2,30,000. Chalk company's tax advisor settled the amount due with the tax authorities at 2,22,000. The difference arose because Chalk company's financial statements were submitted sometime before the tax computation was finalized. The financial statements were submitted sometime before the tax computation was finalized. Okay. Therefore, the directors had to make prudent estimate of the potential tax liability to include in the financial statements. This year, Chalk Company's estimated tax bill to be 2,65,000, but it is a little confused as to how this should be reflected in the financial statements. अब बता. एट द ईयर एट द देखो क्वेश्चन देख क्या पूछा है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेटिंग टू द टैक्सेशन इन चॉक कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज एट द एंड ऑफ द करंट ईयर. करंट ईयर. Okay. सोच के बता. Um, C. कैसे किया? Minus किया. Like if you minus 230 minus 222, you get 8. And we didn't have to pay that much money. So फिर because we're settling it in this year, it will be 265 minus 8, which gives us 257. ओके. How would you do it? सी, ये जो 2,65,000 है, ये तो हमें इस साल पे करना ही है. बराबर है, ये तो हमें क्लोज करना ही है. तो ये हमारे करंट ईयर में तो आएगा ही, Yeah, so that पोटेंशियल comes in our लायबिलिटी. statement of financial position liability. But then we have two options here. One is तो ए statement तो of चला financial गया. position liability. Yeah. And we have tax expenses. बराबर बराबर बराबर. तो फिर टैक्स के लिए एक्सपेंस हो रहा है, दैट्स लाइक 257 ना, अगर इस ईयर का हमें But रिटर्न्स aren't मिलेगा these तो. two options just the same? वो प्रिंटिंग एरर है. अच्छा, प्रिंटिंग एरर है. ओके.
अच्छा, तो ये जो 8,000 है जो हमने लास्ट ईयर पे नहीं किए हुए थे, इनका क्या? इनका इफेक्ट सॉरी, तो लास्ट ईयर क्या? ये जो 8,000 है, 8,000, ये जो हमने या लास्ट ईयर नहीं पे किए थे, उसका क्या? आई थॉट दैट मेंट कि 8,000 हमें मिलेंगे. It was estimated that it was 230, but we paid हम्म, 222 बराबर। सो because we हमने settled the amount, right? तो Like people हमने don't take less money, right? ओवर एस्टिमेट किया हुआ था। Yeah, बराबर है, हमने ओवर yeah. एस्टिमेट किया हुआ था 8,000। हाँ. सो व्हाट इज द ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग 8,000 ओवर एस्टिमेशन? हम लायबिलिटी से माइनस करते हैं Yeah. एंड नहीं. एक्सपेंस में Uh, कम करते हैं। like debit income tax liability and credit income tax charge. बराबर. ठीक है, वी डेबिट फाइनेंशियल लायबिलिटी एंड वी क्रेडिट टैक्स चार्ज। सो ये जो कम हो रहा है ना, ये तो लास्ट ईयर अभी यही है कि ये जो 8,000 हमने कम किया है, ये तुझे नहीं लगता ये इसमें ए में होगा? No, but क्वेश्चन में दिया है कि like in the current year ना. हाँ, सो करंट ईयर का तो तेरा टैक्स एक्सपेंस है ही ना 12,000। देखते हैं एक बार। द करेक्ट आंसर इज सी। द लायबिलिटी इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इज इक्वल टू एस्टिमेटेड अमाउंट पेएबल फॉर द करंट ईयर। तो ये वाला, हम्म. तो ये तो इनका बराबर है कि ये लायबिलिटी हमारा एस्टिमेशन है। लेकिन हम्म. ये क्या है? द टैक्स चार्ज in the statement of profit or loss is equal to estimated amount payable for the current year minus last year's over provision। तो ये इन्होंने टैक्स चार्ज में से पीएनएल के माइनस किया हुआ है। बेसिकली ये टैक्स रिफंड है जो ये लोगों ने यहाँ पे एडजस्ट किया हुआ है। ठीक है। Yeah. ओके।